Hello student, we are begin with chapter 6 and we studied about the nutrition process. Nutrition is a life process which helpful for the maintenance of a life, means the growth and development for a life. Nutrition, a process in which the organism intake food and obtain energy. Simply we say that nutrition is a process in which an organism or a life intake food. A process in which an organism or a life intake food and obtain energy, जिसमें फूड को बॉडी के अंदर लिया जाता है, जिससे उसका कुछ केमिकल प्रोसेसेस यानी कुछ रिएक्शंस होती है जिससे फूड की ब्रेकिंग डाउन होती है और ब्रेकिंग डाउन से उस ऑर्गेनिज्म से या उस लाइफ को एनर्जी जो है वो बॉडी को मिलता है, जिससे वो अपनी बॉडी की कई सारी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है. इट मीन्स उस लाइफ की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है. ठीक. So nutrition in which intake of food and obtain energy. Intake of food and obtain energy. Clear? So how the intake of food means the different organisms have the different kinds of food habit. The food of the organism is a different way. Is it means such organism utilize the simpler food. Such organism utilized complex food. Simpler food means inorganic food. Complex food means organic food. Organism required the different kinds of food. Simpler food and complex food. Simpler food means inorganic food. Complex food means organic food. Inorganic food means, for example, CO2, H2O, and organic food means carbohydrates, like this. So when CO2 and H2O it combine, it forms a food molecule, means the simpler food. It combine and it forms a new food that is called a complex food. Such organism it intake food in a simpler way or simplest kind of food means inorganic food by using CO2 and water. CO2 is simpler food, H2O is a simpler food or inorganic food. It combine and it forms a complex food. That is actually a separate process or a separate kind of nutrition that we studied later. Complex food, such organism obtaining the or intake organic food, for example carbohydrate. Carbohydrate is a complex food. It a breaking down into simpler food, means simpler to complex and complex to simpler, means we say that the nutrition have different in types on the basis of the food, because the such foods are inorganic and such foods are organic. So we divide the nutrition process mainly in two types, and that is the autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. The two types of nutrition, autotrophic and heterotrophic. Auto means self. Trophic, it means synthesis, means such organism synthesize their food by
on activities. That type of nutrition is generally called as autotrophic nutrition, and that type of organisms are called autotroph. The organism which synthesized food self are called autotroph, and that type of mechanism is called autotrophic, and nutrition is called autotrophic nutrition, in which the autotroph or the organism utilize the simpler food and it forms the complex food. Utilized simpler food means inorganic food, and it form the complex food, organic food. Hetero means different. Trophic means synthesis. Heterotrophic nutrition, a type of nutrition in which the organism utilized such food by a different ways and synthesized by a different techniques. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें अलग अलग तरीके से फूड को सिंथेसाइज्ड किया जाता है और उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है मीन्स ऑर्गेनिज्म जो ऐसे न्यूट्रिशन को कराने में हेल्प करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? दीज आर एक्चुअली कॉल्ड दी हेटेरोट्रॉफ. द ऑर्गेनिज्म विच हेल्पफुल to synthesize the food by a different technique, these are called the heterotroph, and that process is called the heterotrophic nutrition. So the two types of nutrition, autotrophic and heterotrophic. Autotrophic self synthesized food, heterotrophic by the different food habits synthesize the food. These organisms are called autotroph, these organisms are called heterotroph. In autotroph or autotrophic nutrition, the simpler food utilized and form the complex food. In heterotroph, the complex food it breaking down into simpler food. Inorganic to organic, organic to inorganic. The complex food change into simpler food by presence of such biocatalyst. Biocatalyst means these are actually such chemical which helpful to breaking down the complex food material. ये कॉम्प्लेक्स है, एक टफ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स है, ये इजीली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, तो उनके ब्रेकिंग के लिए हम कुछ केमिकल्स को उनके साथ में रिएक्शन कराते हैं या फिर नेचुरली ये प्रोसेस होता रहता है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो उन केमिकल की प्रेजेंस में सिंपलर फूड में चेंज हो जाता है. ऐसे जो केमिकल्स हैं जनरली उनको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड द बायोकैटालिस्ट और दीज आर कॉल्ड द एंजाइम्स. Means the heterotroph organism it having such a biocatalyst in their body in which the complex food change into its simpler food molecule. It means the plant it utilized the simpler food. Autotroph means self synthesized. The self synthesized organisms are autotroph, and autotrophs are generally plant. Means the organism which prepare food by their own, and plant are the organism which prepare their food by own activity in which the simpler food is CO2 and H2O. It forms a complex food C6H12O6 as a glucose. CO2 and H2O inorganic, C6H12O6 now it is called organic food. Clear? Heterotrophic in which the complex food, this complex food material utilized and breaking down by such
biocatalyst or in presence of such enzymes or such chemical which change again into its simpler food molecule which is helpful in growth and development. So one by one we studied about the types of nutrition. What is the autotrophic nutrition and what is the heterotrophic nutrition, how this process occurs in different organism. So first we start the autotrophic nutrition, a type of nutrition in which plant prepare their food by own activities is called autotrophic nutrition. Who prepare food by their own? The plants prepare their food by own. That is called the autotrophic, and that process is generally called as photosynthesis process. That process is generally called as photosynthesis. Plant prepare their food by own, and that process is generally called as photosynthesis process. Photo, it means light, means energy, light energy. It means a plant require light energy to prepare their food by own. That process is called photosynthesis process. And we say that plant utilize the CO2 and H2O, the raw material which is required by plant for photosynthesis. These are the raw material. जो प्लांट जो है वो कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से. CO2 एटमॉस्फेयर से, एंड वाटर प्लांट रूट जो एब्जॉर्ब करती है. CO2 and water are generally called as raw material, and it is required for plant to prepare food by their own and for photosynthesis process. It means अगर प्लांट को अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो हम ऐसा करें कि एक सिलेंडर भर के उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे दें और एक बोतल भर के उसको वाटर दे दें, और हम प्लांट के सामने रख दें और उसको कहें कि आपको एक सिलेंडर भर के हमने वाटर दिया है, सॉरी एक सिलेंडर आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिया है और एक बोतल आपको वाटर दिया है, या एक बकेट दे दिया, एक बकेट आपको वाटर दिया है, आप अपना फूड प्रिपेयर कीजिए. तो क्या ये पॉसिबल है कि क्या हम उनको ऐसे CO2 और वाटर जो है वो उनको एज अ रॉ मटेरियल दे दे, प्लांट के सामने रख दे, कहें कि आप फूड बनाइए, तो क्या वो बनाएंगे? क्या वो फूड सिंथेसाइज्ड होगा? नहीं होगा. इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ कंडीशन की रिक्वायरमेंट है. कौन सी कंडीशन की? इट मीन्स प्लांट को लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. फोटो ऐसा भी हम लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसा कह सकते हैं, प्लांट को सनलाइट की रिक्वायरमेंट है. लाइट एनर्जी इट मीन्स सनलाइट, यानी कि प्लांट के लिए सिर्फ रॉ मटेरियल CO2 और वाटर ही जरूरी नहीं है. अगर CO2 और वाटर से उसको फूड प्रिपेयर करना है तो इस प्रोसेस को आगे चलाने के लिए उनको लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. इट मीन्स उनको सन लाइट की रिक्वायरमेंट है ना, लाइट एनर्जी चाहिए. तो मीन्स अब हमारे पास में 3 कंडीशन हो गई. एक तो हमारे पास में हो गए 2 रॉ मटेरियल CO2 एंड वाटर, और एक हो गया हमारे पास में सनलाइट. मीन्स अब प्लांट को अपना फूड प्रिपेयर करना चाहिए. लेकिन हम क्या देख रहे हैं जनरली कि ये 3 कंडीशन होने पर भी प्लांट जो है वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं. तो फिर ऐसा क्या है
कि प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करें। तो जनरली हमने देखा है कि प्लांट्स का जो कलर्स है, मीन्स उनका लीव्स का जो कलर है वो जनरली कैसा है, ग्रीन। द कलर ऑफ प्लांट लीव इज ग्रीन। किसके कलर की बात कर रहे हैं हम, प्लांट लीव्स की। उनका कलर कैसा है, जनरली ग्रीन। ग्रीन क्यों है, वी नो वेरी वेल, बिकॉज अ पिगमेंट इज प्रेजेंट। पिगमेंट का मतलब कलर, कि प्लांट के पास में एक ग्रीन कलर का, यानी कि उनकी प्लांट के जो पार्ट्स, जो लीव्स है, उनके पास में एक ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है, या जिसको हम पिगमेंट को हम जनरली प्लास्ट ऐसा भी हम बोल सकते हैं, प्लास्ट, और इट इज कॉल्ड पिगमेंट, और इट इज कॉल्ड कलर। तो लीव्स के पास में कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है। और जो ग्रीन प्लास्ट है, उसी ग्रीन प्लास्ट को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और जो क्लोरोप्लास्ट है उसके पास में जो पिगमेंट है ग्रीन कलर का, उस पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल, है ना। इट मीन्स कि CO2, वाटर और सनलाइट, ये तीन होते हैं, लेकिन उनको जो है वो क्लोरोफिल पिगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होगा तो ये प्रोसेस आगे नहीं चलेगा। क्यों, तो हम जनरली क्या कहते हैं, विच पार्ट ऑफ प्लांट लीव्स प्रिपेयर फूड। तो आपका तुरंत ही आंसर होगा, द लीव्स इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर द फूड। लीव्स को जनरली हम क्या कहते हैं, किचन ऑफ सेल। लीव्स आर जनरली कॉल्ड एज किचन ऑफ सेल। किचन ऑफ सेल का मतलब, किचन क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है, यानी कि ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर फूड प्रिपेयर होता है। तो प्लांट के पास में ऐसा कौन सा प्लेस है, ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पर फूड प्रिपेयर होता है, तो हम क्या कहते हैं, लीव्स। तो इसीलिए लीव्स को जनरली हम क्या बोलते हैं, लीव्स इज जनरली कॉल्ड एज किचन ऑफ सेल। और लीव्स के पास में ऐसा क्या है कि फूड प्रिपेयर हो जाता है, जिसमें सिंपलर फूड यानी जो इनऑर्गेनिक है वो एक ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करे, तो हम कहेंगे कि उसके लीव्स के पास में एक ग्रीन कलर का प्लास्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। और ये क्लोरोफिल पिगमेंट करता क्या है, इट एब्जॉर्ब द सनलाइट, यानी कि सनलाइट तो चाहिए लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, क्लोरोफिल करेगा। यानी कि सिर्फ एटमॉस्फेयर से CO2 मिल जाए, प्लांट रूट वाटर को एब्जॉर्ब कर ले और सनलाइट मिल जाए और प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर दे, पॉसिबल नहीं है। एक क्लोरोफिल पिगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि दो और कंडीशन भी ऐसे हैं जो इस प्रोसेस को आगे चलाती हैं, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मीन्स क्लोरोफिल इट एब्जॉर्ब द सनलाइट and change this light energy into chemical energy। लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी व्हेन क्लोरोफिल इट एब्जॉर्ब द सनलाइट। क्लोरोफिल जब इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो उस समय ये जो लाइट एनर्जी यानी सनलाइट है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस होता कहाँ पर है, लीव्स में तो होता है, लेकिन लीव्स में भी कहाँ पर हो रहा है, तो हम कहेंगे कि प्लांट के पास में एक ऑर्गेनेल है और उस ऑर्गेनेल को हम बोलते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड के अंदर ये प्रोसेस होता है ना। कहाँ पर होता है, जहाँ पर उसके ग्रेना होते हैं, है ना, ग्रेना एंड थैलेकोइड्स, प्लास्टिड के अंदर ये प्रोसेस होता है। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि हम बात करें यहाँ पर प्लांट के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की, जिसमें CO2 जो वो एटमॉस्फेयर से कैप्चर करता है, वाटर रूट से एब्जॉर्ब करता है, और ये दोनों ही रॉ मटेरियल हैं जो इस प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन इन दोनों से कंबाइन होकर यहाँ पर जो ऑर्गेनिक जो फूड बन रहा है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पर जो बनने वाला है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन की रिक्वायरमेंट है।
कि ये प्रोसेस को आगे कब चलाएंगे, तो हम क्या कहेंगे कि क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट लीव्स के पास में होता है। ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो उन सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगा। किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, सनलाइट को। जब ये एब्जॉर्ब करता है तो सन की जो लाइट यानी लाइट एनर्जी जो है वो किस में चेंज हो जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और मैंने कहा कि ये जो प्रोसेस है सनलाइट जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी फूड प्रिपेयर हुआ है ना। तो ये जो प्रोसेस जो है वो कहाँ पर होता है, तो ये जो प्रोसेस है वो प्लांट सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिड, है ना। और अगर हम सपोज ये प्लास्टिड का ऐसा हम डायग्राम बनाए जो कि एक डबल लेयर्ड सेल ऑर्गेनेल से जो कहाँ पर होता है, तो जनरली हम कहेंगे कि प्लांट सेल के पास में होता है ना। इनके पास में यहाँ पर उसके प्लास्टिड के पास में मेनली 2 पार्ट्स होते हैं या 2 कंसिस्ट पार्ट्स मिलके बना होता है, ग्रेना एंड स्ट्रोमा, है ना। तो ये क्या है, ग्रेना, है ना। और उसके अंदर जो लिक्विड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और ये जो ग्रेनम बहुत सारी स्ट्रिप्स है जिसको हम बोलते हैं थैलेकोइड्स, है ना। ये क्या कहलाती हैं, ये क्या है, ये थैलेकोइड्स है ना। ये ग्रेना है, ग्रेनम स्ट्रिप थैलेकोइड्स है, और उनको कनेक्ट करने वाली ये क्या है, ये लेमिली है जो उनको कनेक्ट करके थैलेकोइड्स को कनेक्ट करके रखती है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो किस में हो रहा है, तो प्लांट लीव्स के पास में, यहाँ पे प्लांट सेल जो है उनके पास में एक पिगमेंट और एक ऑर्गेनेल है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिड। तो ये जो पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो कहाँ पर होता है, तो ग्रेना वाले पार्ट में होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ग्रेना में होता है। यानी कि कहाँ पर हो रहा है, ये प्लास्टिड के अंदर ही प्रोसेस। अगर आपसे कोई पूछे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट में तो होता है, लेकिन प्लांट में भी कहाँ पर होता है, तो प्लांट सेल के पास में एक प्लास्टिड है, प्लास्टिड में ही प्रोसेस होता है। तो हम यहाँ पर बात करें कि CO2 वाटर और क्लोरोफिल पिगमेंट जो प्लांट लीव्स के पास में है। प्लांट लीव्स को हम किचन ऑफ सेल्स ऐसा बोलते हैं, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और सनलाइट जो लाइट एनर्जी है उसको वो कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, और वो एक फूड मॉलिक्यूल प्रिपेयर करता है C6H12O6 प्लस। उसी समय वो ऑक्सीजन का रिमूवल करता है और वाटर का ट्रांसपिरेशन करता है ना। वाटर ट्रांसपिरेट होता है, वाटर बाहर निकलेगा और उसी समय ऑक्सीजन है ना। अगर CO2 प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 का यूटिलाइजेशन करते हैं और ऑक्सीजन को वो बाहर निकालते, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऐसा करते हैं। रेस्पिरेशन में नहीं, रेस्पिरेशन में प्लांट भी ऑक्सीजन ही लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म inhale O2 and exhale CO2. That's why it recommend that don't sleep under a tree at night time, because at night time there is no photosynthesis process and the plant exhale more CO2, and CO2 is a waste product ना, जो हमारे लिए भी रिक्वायर्ड नहीं। एटमॉस्फेयर में CO2 का परसेंटेज ज़्यादा हो गया कब, नाइट टाइम पर, है ना। और अगर हम प्लांट के नीचे अगर हम सोए हैं तो वहाँ CO2 ज़्यादा होने के कारण हो सकता है हमारी डेथ हो जाए, क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में CO2 का यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। ठीक है, हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें, 6CO2 प्लस 12H2O, it gives C6H12O6, that is a glucose molecule, food molecule, 6O2 and 6H2O। ऑक्सीजन का रिमूवल होता है और वाटर का यहाँ पर क्या होता है, कौन सी प्रोसेस से बाहर निकलती है, ट्रांसपिरेशन। द रिमूवल ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर जो है वो प्लांट की जो एपिडर्मल जो सेल हैं उनसे हमें बाहर ऐसा वाटर ड्रॉपलेट्स हमें नजर आता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऐसा जनरली होता है, इवापोरेशन ऑफ वाटर ऐसा भी हम जनरली इसको बोल सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय
on process, and that process is called photosynthesis, because in this process the sunlight is required, in which the carbon dioxide react with water, the chlorophyll pigment, it capture or it absorb the sunlight and convert the light energy into chemical energy, and it prepare a food C6H12O6 glucose. It remove the oxygen back to the atmosphere, and waste of removal of the water by transpiration process. There are such event ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, कि प्रोसेस तो हो रहा है लेकिन इस प्रोसेस के मेन इवेंट कौन कौन से हैं, यानी कि इस प्रोसेस, इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो फर्स्ट तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर होता है एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन किसका, लाइट एनर्जी का। किसका हो रहा है, सनलाइट का। और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल में। ऐसा मैंने अभी बताया आपको, केमिकल एनर्जी में। तो एब्जॉर्प्शन, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। तो फर्स्ट इवेंट क्या होगा इस प्रोसेस का, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। तो फर्स्ट प्रोसेस होगा एब्जॉर्प्शन। द सेकेंड वन इज कन्वर्जन होगा यहाँ पर किसका, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, कन्वर्जन। किसका कन्वर्जन हुआ, तो एक तो मैंने बताया कि लाइट एनर्जी जो है वो किस में चेंज हो गई, केमिकल एनर्जी में। और स्प्लिटिंग होगी, कन्वर्जन तो होगा लाइट एनर्जी का, और स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग। तो किसका ब्रेकिंग डाउन होगा, वाटर। वाटर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग डाउन हो जाएगा। किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द ब्रेकिंग डाउन और द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाएगी बैक टू द एटमॉस्फेयर, और जो हाइड्रोजन है वो उस केमिकल एनर्जी में, यानी कि जो फूड मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो रहा है उसके साथ में वो मिक्स हो जाएगा। तो फर्स्ट इवेंट है एब्जॉर्प्शन, सेकंड है कन्वर्जन एंड स्प्लिटिंग। कन्वर्जन तो होता है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, और स्प्लिटिंग जो है या ब्रेकिंग, इसको हम डिकम्पोजिशन ऐसा भी हम बोल सकते हैं। देखिए डिकम्पोजिशन ही हो रहा है एक्चुअल में, यहाँ पर डिकम्पोज होना यानी कि ब्रेकिंग होना। किसका ब्रेकिंग हो रहा है, वाटर का। किस में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। क्लियर। एंड थर्ड इज रिडक्शन। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर रिडक्शन किसका हुआ। रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होता है ना, और हाइड्रोजन का एडिशन होता है। तो यहाँ पर रिडक्शन किसका हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन, है ना। CO2 का रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन यहाँ से भी बाहर निकलेगी, और जो कार्बन है वो इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ में मिलकर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेगी, है ना। यानी कि यहाँ पर जो स्प्लिटिंग हुई है इस वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें से ऑक्सीजन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, है ना। ऑक्सीजन जो है बैक टू द एटमॉस्फेयर जाएगी, कुछ ऑक्सीजन जो है फूड मॉलिक्यूल को प्रिपेयर कराने में हेल्प कर रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। और उसी समय यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन हो रहा है CO2 का, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होगी और कार्बन चेंज हो जाएगा किस में, कार्बोहाइड्रेट्स में। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन जो है वो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना, उसके साथ में मिलकर और ये फूड प्रिपेयर करेगी C6H12O6। तो 3 इवेंट हो गए यहाँ पर किसकी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल,
conversion of sunlight into chemical splitting means breaking of water into hydrogen and oxygen, reduction of carbon dioxide and it form the carbohydrates। ये तीनों इवेंट जो है वो आपके बिल्कुल प्रॉपरली जो आपके रीडर के अंदर क्लियरली यहाँ पर ही दिए हुए हैं। द इवेंट अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, कौन से प्रोसेस में? इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये इवेंट दिए हुए हैं आपको, जो अच्छे से आपको रीड करना है, याद करना है। एग्जाम में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये तीनों इवेंट याद रखना है, एब्जॉर्प्शन, सेकंड कन्वर्जन एंड स्प्लिटिंग एंड थर्ड इज रिडक्शन। इज इट क्लियर? देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि प्रोसेस एक्चुअल में होता कैसे है ना। तो हमने कहा कि प्रोसेस जो पूरा है वो हो तो कहाँ रहा है? प्लांट लीव्स के अंदर हो रहा है ना। प्लांट लीव्स के पास में यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट है, उस पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट, जो एक्चुअल में ऐसा हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी भी हम एक और स्पेशल रोल है जिसकी हम बात करते हैं कि अगर हम प्लांट लीव्स की बात करें, प्लांट लीव्स है, प्लांट लीव्स के पास में टू सरफेसेस हैं, ये अपर सरफेस है और ये लोअर सरफेस है, ठीक है। ये अपर और ये वाली लोअर सरफेस हो गई, है ना। ऊपर नीचे आप अच्छे समझ से, सपोज ये अपर सरफेस है और ये लोअर सरफेस है। अपर सरफेस जो है वो जनरली हमने देखा है कि वो कैसी होती है? स्मूथ होती है, और लोअर सरफेस जो है वो जनरली कैसी होती है? रफ होती है। रफ क्यों है? तो अगर हम उसके लोअर पार्ट को देखें तो वहाँ पर हमें कुछ हेयर नज़र आते हैं, है ना। तो उसको हम बोलते हैं एक्चुअल में एपिडर्मल हेयर। लीव्स के हेयर यहाँ पे एपिडर्मल हेयर, क्योंकि जो लीव्स हैं उस वो किससे बनी हुई है? तो कई सारे सेल से मिलकर बनी। उसकी जो सेल्स है, यानी कि ऐसे सेल जो प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, अपर लेयर बनाने का, उस ऐसे सेल को जनरली एपिडर्मल सेल ऐसा बोलते हैं ना। जो प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है उसको हम एपिडर्मल सेल ऐसा बोलते हैं, जनरली एपिडर्मल लेयर बोलते हैं। तो उनके ऊपर हेयर प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मल हेयर से सा। तो वो हेयर एक्चुअल में किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? हेयर का काम क्या है? तो प्रोटेक्शन देना। ये किसको प्रोटेक्ट कर रही है? कुछ टाइनी पोर्स है। सच टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट एट द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स, यानी कि 99.99% लीव्स जो होती है उनमें लोअर सरफेस पर कुछ टाइनी पोर्स होते हैं। केवल 1% ऐसा होता है, कुछ प्लांट लीव्स ऐसी होती है जिनकी अपर एंड लोअर दोनों सरफेस पर ये टाइनी पोर्स प्रेजेंट होता है। एक्सेप्शन कुछ ही लीव्स के अंदर ऐसा होता है, बाकी मोस्टली प्लांट लीव्स की लोअर सरफेस पर ही टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस टाइनी पोर्स आर जनरली कॉल्ड एज स्टोमेटा। दिस टाइनी पोर्स आर जनरली कॉल्ड एज स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करते हैं? इट हेल्प टू एक्सचेंजेस द गैसेस, ये गैसेस के एक्सचेंज कराने में हेल्प करते हैं। ऑक्सीजन एंटर कराना, CO2 बाहर निकालना, CO2 अंदर लाना, ऑक्सीजन बाहर निकाल, एक्सचेंजेस कराने में हेल्प करते हैं। स्टोमेटा का मेन फंक्शन क्या है? स्टोमेटा का इट हेल्प टू एक्सचेंजेस द गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैस O2 एंड CO2, है ना, उनके मतलब अंदर लेना और उनको रिमूवल में हेल्प कराता है। तो मीन्स यहाँ पर एक स्पेशल रोल है फोटोसिंथेसिस में, वो किसका है? स्टोमेटा का। कि स्टोमेटा जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एटमॉस्फेरिक CO2 को एंटर कराते हैं और उसी समय रिमूव कराते हैं। किसको? ऑक्सीजन को रिमूव कराते हैं। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखें स्टोमेटा का। These are actually called as guard cell. And it is called the stomata. Stomata are present at the lower surface of leaves
and these are actually protected by such cell, and these are called the guard cell. And these guard cell are protected by or surrounded by such layers of cell. These are actually called the epidermal cell, और है ना, ये it is called the epidermal cell. Such hairs are present on this epidermal cell. These are called the epidermal hair. These are the epidermal cells. These are guard cell. Nucleus of guard cell and the chloroplast containing guard cell. It is nucleus of guard cell. It is chloroplast in guard cell. Epidermal cell, also called as subsidiary cell. Epidermal, or these are called the subsidiary cell. The function of stromata, it helpful in exchanges of gas. The stromata are here. These are actually one pair of guard cell. It protect the stromata. It actually help in opening and closing of stromata. ये स्ट्रोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करती हैं. जो गार्ड सेल्स हैं वो कुछ सेल से चारों तरफ से कवर्ड रहती है, जो प्रोटेक्टिव सेल्स है, जिनको हम एपिडर्मल सेल या फिर उनको हम सब्सिडरी सेल से सभी हम इनको बोल सकते हैं. अगर हम इन गार्ड सेल के पास में देखें तो ये न्यूक्लियस है और ये कहलाता है इनका क्लोरोप्लास्ट, जो पिगमेंट जो है वो इनके पास में प्रेजेंट है. अब होता क्या है, हम जनरली क्या करें कि प्लांट रूट जो है वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, और स्टोमेटा सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट है, लीव्स के. यानी कि जो वाटर है वो कहाँ पर गया एक्चुअल में, लीव्स में. तो वाटर कहाँ से गया, तो ये जो सब्सिडरी सेल हैं वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ और वो ट्रांसपोर्ट हो गया कहाँ पर, प्लांट के वेरियस पार्ट्स में. कुछ वेसल्स होते हैं जो क्या करते हैं, इस वाटर को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं. तो यहाँ पर वाटर जो है वो किसके पास में जा रहा है, प्लांट लीव्स में, प्लांट के वेरियस पार्ट्स में जाता है. तो उसमें भी किस में गया, प्लांट लीव्स में. प्लांट लीव्स में कहाँ पर जाएगा, एपिडर्मल सेल. एपिडर्मल सेल से होता हुआ कहाँ पर गया, वो गार्ड सेल. जब गार्ड सेल के पास में जाएगा तो गार्ड सेल अभी कैसे थे, ऐसे है ना, इंक्रीज थी उसका साइज. जैसे वाटर अंदर जाएगा तो उसका साइज थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा. रिड्यूस होने यानी कि वो कैसे हो जाएगी, स्वेल हो जाएंगी, है ना. अभी पहले कैसी थी, उनकी साइज इंक्रीज थी, गार्ड सेल बड़ी दिख रही थी. जैसे वाटर अंदर जाएगा तो वो थोड़े से फुलकर मोटी हो जाएंगी, तो साइज कैसा हो जाएगा उनका, डिक्रीज. जिससे इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा. दोनों अलग अलग हो जाएंगे, गैप हो जाएगा, क्योंकि अभी दोनों यहाँ पर इस तरह से इनका साइज दिख रहा है. जैसे यहाँ पर वाटर जाएगा, स्वेल होने से यहाँ पर इस तरह से थोड़ी सी इनके बीच में यहाँ पर गैप होते ही स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे. जैसे ही यहाँ पर स्टोमेटा ओपन होंगे तो एटमॉस्फेयर से CO2 है वो क्या करेगी, उसमें एंटर करेगी. और CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूटिलाइज आएगी. साथ साथ ही क्या होगा, अब वापस जितना वाटर प्लांट को उस प्रोसेस में यूज में लेना है, जो वेस्ट जो वाटर वापस उसका क्या होगा, रिमूवल होगा. तो वापस क्या होगा कि यहाँ पर ये जो गार्ड सेल जिनका साइज डिक्रीज हो गया था, तो यहाँ पर वाटर का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है. तो ये जो स्वेल हो गई थी वापस कैसे हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, है ना. अभी ये फूल के मोटी हो गई थी, है ना. अब वो साइज जो है वापस उनका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. इंक्रीज होते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएंगी, स्टोमेटा भी क्लोज हो जाएंगे, और जिससे ट्रैप पास में आते ही स्टोमेटा ट्रैप हो जाएंगे. ट्रैप होते ही ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, और वाटर जो है, जो वेस्ट अब जो रहा है वाटर, बैक टू द एज अ ट्रांसपिरेशन जिसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस से वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना. यानी कि वाटर जैसे एंटर हुआ तो एपिडर्मल सेल से गार्ड सेल की वजह से गार्ड सेल स्वेल फूल कर मोटी हो जाती है, जिससे इनका साइज डिक्रीज हो जाता है. तो
तो स्टोमेटा को ओपन होने के लिए चांस मिल जाता है। उसी समय एटमॉस्फेरिक CO2 एंटर करती है और वाटर और CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूटिलाइज्ड हो जाते हैं। जब ये प्रोसेस हो जाता है उस समय ऑक्सीजन का रिमूवल होना होता है और कुछ वाटर जो है वो एज ए ट्रांसपिरेशन, है ना, ट्रांसपिरेट होता है, बाहर निकलना होता है वाटर को। तो यहाँ पर जो गार्ड सेल हैं जो फूलकर मोटी हो गई थी, स्वेल हो गई थी, अब वापस वो कैसे श्रिंक हो जाती है, जिससे इनका साइज वापस कैसे हो जाता है, इंक्रीज। स्टोमेटा को वो क्या करते हैं, ट्रैप करते, प्रेशर लगाते हैं, पास में आने से प्रेशर पड़ेगा स्टोमेटा पर, है ना। जैसे इन स्टोमेटा के ऊपर प्रेशर आएगा तो उसमें से ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी और वाटर जो है वो एज ए ट्रांसपिरेट होकर बाहर निकल जाएगा। और ये डायग्राम आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज्ड स्टोमेटा। ओपन कब होगा, जब गार्ड सेल के पास में वाटर आएगा तो गार्ड सेल थोड़ी सी कैसी होगी, स्वेल हो गई, तो स्वेल होते ही यहाँ पर स्टोमेटा के पास में क्या हो जाएगा, और स्टोमेटा कैसे हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गैप हो गया तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे और यहाँ पर CO2 एंटर कर जाएगी। जैसे ही यहाँ पर CO2 यूटिलाइज्ड होकर वाटर वापस बाहर निकल रहा है, तो देखिए अगर सेकंड डायग्राम में आप देखें तो वापस साइज इंक्रीज हो गया, पहले कम दिख रहा है इन गार्ड से, येलो जो है वो गार्ड सेल है और उनके बीच में आपको ये दिख रहे हैं वो स्टोमेटल पोर या स्टोमेटा है। तो इनका साइज है वापस कैसा हो गया, इंक्रीज हो गया और इंक्रीज होते स्टोमेटा कैसे हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ट्रैप हो गए, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और वाटर जो है वो ट्रांसपेरेंट होकर बाहर निकलेगा। क्लियर होगी ये चीज़ आपको। स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग जब होती है उसी समय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। तो ये तो हो गया आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की प्लांट किस तरह से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। अब देखिए अगर आप रीडर में एक एक्टिविटी देखें 6.1 एक्टिविटी एक्चुअल में शो कर रही है। मेन एम है इस एक्टिविटी का, इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट प्रिपेयर फूड, और उनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है ना, कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही प्लांट जो है वो फूड प्रिपेयर करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो यहाँ पर उस एक्टिविटी के लिए जनरली क्या किया हमने, एक ऐसा पोटेड प्लांट लेते हैं जिनके लीव्स कैसे हैं, वेरीगेटेड। ये वेरीगेटेड का मतलब है कि उसके लीव्स के ऊपर कुछ तो पार्ट जो है वो ग्रीन हो और कुछ येलो हो। वेरीगेटेड लीव्स यानी कि जैसे मनी प्लांट्स की हम बात करें तो उसकी जो लीव्स होती है बिल्कुल कंप्लीट ग्रीन ही होके, कहीं कहीं पर हमें ऐसे पैचेस नजर आते, कहीं कहीं पर वो ग्रीन है, कहीं कहीं पर वो कैसे येलो है। तो ऐसे प्लांट को हम क्या कर दें, किसी एक डार्क रूम में रख दें, कितने 3 डेज के लिए या 2-3 डेज के लिए। क्यों रख रहे हैं, ताकि उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट लीव्स ने जो फूड प्रिपेयर किया है वो फूड जो है वो प्लांट कंप्लीटली क्या कर ले, यूटिलाइज्ड कर ले, यूज़ में ले ले उसको। आफ्टर 3 डेज हम क्या करें, उस प्लांट को फिर से हम 6 आवर्स के लिए या फिर 2-3 आवर्स हम ऐसा कह सकते हैं, या फिर 6 से ज़्यादा आवर्स के लिए हम इसको कुछ देर के लिए इसको हम सनलाइट में रख दें। फिर किसी भी उस पोटेड प्लांट की कोई भी एक लीव्स है उसको हम वहाँ से हम तोड़ लें, प्लग करें उसको, ठीक है। और जहाँ जहाँ पर भी ग्रीन मार्क है उसको हम किसी शीट पेपर पर हम उसको ट्रेस कर लें या फिर हम उसको मार्क कर लें। उस लीव्स को पहले हम क्या करें, कुछ टाइम तक लिए 2-3 मिनट के लिए उसको हम बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद में हम उसको एक ऐसे बीकर में डालेंगे जिसमें क्या है, अल्कोहल है, और उस अल्कोहल को हम तब तक बॉईल करेंगे, है ना, जब तक कि उसके अंदर से बबल्स निकलने नहीं, हीट एनर्जी नहीं निकले, उतना उसको हम क्या करें, बॉईल करें। जिससे क्या होगा कि उस अल्कोहल का जो कलर है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ग्रीन। यानी कि उसके अंदर जितना भी जो पिगमेंट्स था, है ना, ग्रीन जो पिगमेंट था वो सारा कहाँ पर आ गया, उस अल्कोहल के अंदर आ गया, ठीक है। अब उस लीव्स को हम क्या करें, बाहर निकालें और उस लीव्स को हम एक आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर कुछ देर तक उसको हम डिप करके रखते हैं, ठीक है। और आयोडीन सॉल्यूशन में जैसे ही हम उसको हम डालेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि जहाँ जहाँ पर भी ग्रीन पार्ट थे वो किस में चेंज हो गए, ब्लू कलर के अंदर चेंज हो गए। आयोडीन जो है वो यहाँ पर एक टेस्ट का काम करता है। आयोडीन को जनरली हम स्टार्च टेस्ट के लिए यूज़ लेते हैं, स्टार्च टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर जो था लीव्स का,
है ना। वो देखिए यहाँ पर सेकंड लीव्स के अंदर आपको कैसा नजर आ रहा है, ब्लू। क्यों नजर आ रहा है कि अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फूड प्रिपेयर करता है, यानी कि जो फूड प्रिपेयर हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, एज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज स्टार्च हम ऐसा कह सकते हैं। तो जो फूड प्रिपेयर हो रहा है ना, वो फोटोसिंथेसिस यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ है, यानी कि सनलाइट नहीं होती तो प्लांट फूड प्रिपेयर नहीं करते। तो यहाँ पर आयोडीन सॉल्यूशन एक इंडिकेटर का काम कर रहा है कि जैसे उस लीव्स के ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो जो ब्लू कलर है वो अपीयरेंस बताता है कि यहाँ पर फूड प्रिपेयर हुआ है, या जो लीव्स है वो फोटोसिंथेसिस का काम करती है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट जो है वो फूड प्रिपेयर करती है। तो मेन एम इस 6.1 एक्टिविटी का है, इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द प्लांट इट प्रिपेयर फूड एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च के प्रेजेंस के लिए आयोडीन सॉल्यूशन का जनरली हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है उसको हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को उसको हम बाद में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।